Assalamu alaikum dear students. In the previous class regarding linear programming, we have done some questions of exercise first of linear programming, and there we are solving the questions of linear programming, means linear programming problems by graphical method. And as we know that the graphical method to solve a linear programming problem comprises of steps. In the first step, first we have to plot the graphs of various inequalities representing various structural constraints on a graph paper. Secondly, we have to locate a region which is in common to all the regions obtained in step first, and this step that region is here known as the feasible region. Thirdly, we have to locate the corner points or extreme points of a feasible region. And finally, we have to substitute the coordinates of that extreme points, that corner points, into the objective function. And the point or the points which will optimize the given linear programming problem is the required solution. And on that exercise, we are on question number 4. And in our question number 4, our problem is to minimize z is equal to 3x plus 5y, means the objective function z is equal to 3x plus 5y. We will keep it as first. Subject to the constraints, जो हमारे पास constraints हैं वो क्या है, x plus 3y is greater or equal to 3 and x plus y is greater or equal to 2, and finally the non-negativity constraint, that is x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. Suppose we are putting this as first, this one as second, this one as third, and this one as fourth. As we know that we have to minimized these steps, including in the graphical solution of a linear programming problem in just 2 steps. In the first step, we are locating the feasible region, and in the second step, we are finding the value of an objective function. So here lies the step first. Step first में हमने क्या करना है, we have to find the feasible region. To find the feasible region. feasible region हमने obtain करना है, find करना है. तो feasible region को obtain करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दो 3 and 4th जो है सेकंड एंड थर्ड जो इनइक्वालिटी है इनको प्लॉट करेंगे. सो सबसे पहले हम आएंगे इनइक्वालिटी सेकंड पे, इस इनइक्वालिटी सेकंड को पहले प्लॉट करेंगे. टू प्लॉट इनइक्वालिटी सेकंड, टू प्लॉट इनइक्वालिटी सेकंड, इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रखा है, क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करनी पड़ेगी लाइन x plus 3y is equal to 3, means x plus 3y is equal to 3. Let us consider a line. Why हमें लाइन क्यों कंसिडर करनी पड़ती है, in order to find the boundary of the region. फिर रीजन उस लाइन के अबो होगा या बिलो होगा डिसाइड करता है ओरिजिन, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. So to plot the inequality second, let us consider a line. Let us consider a line. हमें एक लाइन को कंसिडर करना पड़ेगा, and that should be x plus 3y is equal to 3. इसके बाद अब हमें ढूंढना पड़ेगा ये लाइन कौन कौन से पॉइंट्स में से पास हो रही है. दिस लाइन passes through the points. This line passes through the points. This line passes through the points. ये लाइन जो है पास हो रही है किस में से, for that we have to make it stable. हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा, the value of x as well as the value of y. तो जैसे मैंने बता दिया है, अगर आपके पास 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है तो टेबल में 3 वैल्यू ले लो, और अगर आपके पास एक ही स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है तो टेबल में 2 वैल्यूज ले लो. इसी तरह आपके पास 3 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं तो टेबल में आप 3 वैल्यू ले सकते हो. सो अगर आपके पास 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट यहां पे अवेलेबल हैं तो टेबल में हमें 3 वैल्यू लेने पड़ेंगे. सो सबसे पहला वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू. सबसे पहला वैल्यू जो है हम x को पुट करेंगे 0. जब x को पुट करेंगे 0, 3y is equal to 3, means y is equal to 3 by 3, so y is equal to 1. So the point must be 0, 1. Finally y को पुट करो 0. जब y को पुट करेंगे 0 तो x का वैल्यू 3 आएगा, तो लास्ट पॉइंट वुड बी 3, 0. Now we have to locate this very point, this second point. So इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैंने आपसे कहा है
कि ये पॉइंट जो है ये ले लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। जब हमने लाइन ले ली x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, ये इनइक्वालिटी प्लॉट करने के लिए जो लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी वो है x प्लस y इज इक्वल टू 2। इन दो लाइन्स को आपस में सॉल्व कर दो इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन कर दो, ये माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स विल कैंसिल आउट, 3y माइनस y दैट इज 2y is equal to 3 minus 2 that's equal to 1. So y is equal to 1 by 2. So यहां पे y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1 by 2, राइट। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सपोज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो x प्लस y इज इक्वल टू 2 में से क्या आएगा, इसमें आएगा x इज x प्लस y का वैल्यू पुट कर दो 1 by 2 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 minus 1 by 2 means x is equal to 2 2s are 4 minus 1 that is 3 divided by 2. So point of intersection जो आएगा that must be 3 divided by 2 and 1 divided by 2. 3 divided by 2 means 1.5 and 1 divided by 2 means 0.5. So this is the point of intersection of the lines x plus 3y is equal to 3 and x plus y is equal to 2, right? So this line passes through the points. Suppose इस पॉइंट का नाम यहाँ पे A रखेंगे, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे B रखेंगे और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे C रखेंगे। So this line passes through the points. ये लाइन जो है पास होगी किन पॉइंट्स में से, A of 0, 1, B of yes 3 by 2, 1 by 2 and C of yes 3, 0. So this line passes through the points A of 0, 1, B of 3 by 2, 1 by 2 and C of 3, 0. ये इन पॉइंट्स में से पास होगी। अब हम देखेंगे, हमें लाइन मिल गई तो पहले इन 3 पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में प्लॉट कर दो, दिस इज योर पॉजिटिव y एक्सिस जस्ट लाइक दिस, दिस योर पॉजिटिव x एक्सिस लाइक दिस, दिस इज ox एंड दिस इज योर oy। हमें इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ non-negativity constraint, that is x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0, that represents the first quadrant. So obviously we have to deal with the first quadrant. So सबसे पहला point, suppose हम यहां पे ले लेंगे, ये हमारा यहां पे 1 है, ये 1 है यहां पे, ये 2 है यहां पे, ये 3 है यहां पे, ये 4 है। So suppose this is 1 2 3 4। Similarly यहां पे ये 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। So this is 1 2 3 and 4। First we have to plot the point that is A of 0, 1, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 मींस पॉइंट यहां पे आएगा एंड नेम दैट एज A of 0, 1, राइट। Second point we have B of 3 by 2, 1 by 2 means x का वैल्यू 3 by 2, 1.5। So x का वैल्यू 3 by 2 that is 1.5 lies here और y का वैल्यू 1 by 2 that is 0.5 lies here। तो इस पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे तो यहां पे आएगा। So this point is here B of, this point is here B of 3 by 2, 3 by 2, 1 by 2 and finally we have to plot the point that is C of 3, 0 and here lies the C of 3, 0. This is C of 3, 0. अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बाय अ लाइन सेगमेंट और अ लाइन। सो द लाइन जस्ट वुड बी लाइक दिस एंड नेम दैट लाइन एज यस x plus 3y is equal to 3, x plus 3y is equal to 3, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बाउंड्री मिल गई रीजन की, लेकिन अब हमें रीजन देखना पड़ेगा कि रीजन कैसे आएगा। वो रीजन जो है बिलो द लाइन आएगा या अबो द लाइन आएगा, डिसाइड करेगा ओरिजिन। ओरिजिन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, 0 is greater or equal to 3, that's not true. So when that's not true, origin does not lie in the region. जब origin region में lie नहीं करेगा तो region not would be below the line, it would be above the line. तो region जो है वो ऐसे आएगा, right? This is the region represented by the inequality second. आगे inequality second, अब हमें
सो यहाँ पे क्लियरली वो नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं कि क्लियरली ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सेकंड। और इसके बाद हमें इनइक्वालिटी थर्ड को प्लॉट करना पड़ेगा। टू प्लॉट द इनइक्वालिटी थर्ड, टू प्लॉट द इनइक्वालिटी थर्ड को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। लेट अस कंसीडर a line x plus y is equal to 2। x plus y is equal to 2 लाइन को कंसिडर कर दो। जब x plus y is equal to 2 लाइन को कंसिडर करेंगे, आप देखेंगे ये लाइन जो है कौन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है। दिस लाइन passes through the points, this line passes through the points। ये कौन कौन से पॉइंट्स में से पास होगी? यस, इसके लिए हम इसका टेबल बना देंगे। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। टेबल में x का वैल्यू, y का वैल्यू यहां पे ले लेंगे, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। फिर से 3 वैल्यू ले लेंगे टेबल में। एक तो प्रीडिफाइंड है, पहले x को वैल्यू पुट कर दो 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। फाइनली y को पुट कर दो 0 तो x का वैल्यू 2 आएगा। और ये पॉइंट जो ऑलरेडी है 3/2 1/2, ये 3/2 जो 1/2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इट इज अ प्रीडिफाइंड पॉइंट। सो ऑब्वियसली a b और c आ गया था, ये इसका नाम यहां पे d रखेंगे। ये ऑलरेडी पॉइंट b ही है और इसका नाम यहां पे e रखेंगे। सो दिस लाइन passes through the points d of 0, 2, yes, b of 3/2, 1/2, and yes, e of 2, 0, e of 2, 0। अब इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। जब प्लॉट करेंगे तो पहला पॉइंट है d ऑफ 0, 2, x का वैल्यू 0, यहां पे y का वैल्यू 2, यहां पे आएगा पॉइंट। सो नेम दैट पॉइंट एज d ऑफ 0, 2, राइट। सेकेंडली वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट b ऑफ 3/2, 1/2। जब b ऑफ 3/2, 1/2 को प्लॉट करेंगे, वो ऑलरेडी प्लॉटेड है यहां पे, राइट। और फाइनली हमें प्लॉट क्या करना पड़ेगा? e ऑफ 2, 0। सो e ऑफ 2, 0 मतलब x का वैल्यू 2, y का 0, x का वैल्यू 2, y का 0, तो यहां पे आएगा। एंड नेम दैट पॉइंट एज e ऑफ 2, 0। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बाय लाइन, just like this, and name that line as x plus y is equal to 2। x plus y is equal to 2। हमें लाइन नहीं चाहिए, हमें रीजन चाहिए, तो बाउंड्री हमें मिल गई। अब रीजन निकालने के लिए ये रीजन इस लाइन के नीचे आएगा या रीजन इस लाइन के ऊपर आएगा, अबो आएगा, डिसाइड करेगा फिर से ओरिजिन। ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर दो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो रिजल्ट आ रहा है 0 प्लस 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, दैट इज 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। दैट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ओरिजिन इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रीजन लाइन के नीचे नहीं बल्कि लाइन के अबो होगा, तो दिस वुड बी द रीजन। सो अब हमें निकालना पड़ेगा फीजिबल रीजन। अगर इस वाले पोर्शन को देखेंगे, ये इनइक्वालिटी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनइक्वालिटी सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन थर्ड को नहीं। अगर इस रीजन को देखेंगे, ये इनइक्वालिटी थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन सेकंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला रीजन जो है और इसके ऊपर ये पूरा रीजन जो है, दैट विल कम आउट टू बी द फीजिबल रीजन। इस फीजिबल रीजन को हम यहां पे शेड कर देंगे। This is the feasible region, and here, irrespective of the previous question, is the feasible region comes out to be unbounded। तो ये हमारा feasible region है।
and the corner points of the feasible region are D of 0 comma 2, B of 3 by 2 1 by 2 and C of 3 comma 0. Clearly the origin does not satisfy the inequality second and third. इनिक्वालिटी सेकंड एंड थर्ड को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो रीजन है वो लाइन के नीचे नहीं लेकिन लाइन के ऊपर आएगा. तो द फीजिबल रीजन इज या इससे पहले इनइक्वालिटी फोर्थ रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इनइक्वालिटी फोर्थ represents the first quadrant. Full stop. The feasible region is as shown shaded in the figure. The feasible region is as shown shaded in the figure. The corner points of the feasible region which are to be examined for optimum solution. तो corner points जो हैं feasible region के जो हमें optimum solution के लिए examine करने पड़ेंगे वो क्या रहेंगे? The corner points of the feasible region which are to be examined for optimum solution are what are they? D of 0 comma 2, B of 3 by 2 1 by 2 and yes C of 3 comma 0. चूंकि बात यहां पे फीजिबल रीजन की जो है वो अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के लिए हमें लास्ट में वो कंडीशन चेक करनी पड़ती है. सो सबसे पहले हम फीजिबल रीजन को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि फीजिबल रीजन चाहे बाउंडेड है या अनबाउंडेड है पहले हमें दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं. सो कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, हम आएंगे स्टेप सेकंड पे. तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू यहां पे निकालेंगे. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू जब हम निकालते हैं हमें एक टेबल लेना पड़ेगा. Table must comprise of 2 columns. In the column first we should have corner points of the feasible region. And in step second we must have value of objective function z. तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है D of 0 comma 2. दूसरा कॉर्नर पॉइंट है B of 3 by 2 comma 1 by 2 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है C of 3 comma 0. जब पहले कॉर्नर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो 3 into 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 plus 5 into 2, so that will come out to be 0 plus 10 and that's equal to 10, right? Second we have to put the value of x equal to 3 by 2 and y equal to 1 by 2, so that is 3 into x का वैल्यू पुट कर दो that is 3 divided by 2 plus 5 into y का वैल्यू पुट कर दो that is 1 divided by 2. तो कितना आएगा? 9 divided by 2, 9 divided by 2 plus 5 divided by 2 and that will come out to be 14 divided by 2 and that will come out to be 7, right?
Finally, we have to put the value of x3 and y0. So 3 into 3 plus 5 into 0 will come out to be 9 plus 0 and that's equal to 9. क्वेश्चन की डिमांड क्या थी एक्चुअली? मिनिमाइज, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए था z का। तो अभी हमें जो 3 वैल्यू मिल रहे हैं, 10 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, इनमें से मिनिमम जो है वो 7 है। सो हम यहां पे लिख लेते द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज this 7 and this 7 would be the required answer, required solution of a given linear programming problem. But here the feasible region is unbounded. So feasible region जब unbounded होता है, हमें solution जो actually मिली थी वो मिली थी 7, but 7 अभी perfect solution नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा, जब feasible region unbounded है और आपके पास minimum चाहिए, तो आपको डायरेक्टली लेनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 5y। ले लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 5y, आपको चाहिए था मिनिमम, तो जब आपको मिनिमम चाहिए था तो कंडीशन आपको यूज करनी पड़ेगी लेस देन, और आपका जो मिनिमम मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेड मिनिमम मिल रहा है वो 7 मिल रहा है और लेस देन 7 ले लो। यहां से आपको मिल रही है एक और इनइक्वालिटी, 3x प्लस 5y इज लेस देन 7। अब आप इस 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 को प्लॉट करोगे, तो इसको प्लॉट करने के लिए फिर से कंसिडर करनी पड़ेगी लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, राइट। अब दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये लाइन कौन कौन से पॉइंट्स में से पास होगी, उसके लिए हमें इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल जब हम बनाएंगे, सपोज ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, x का वैल्यू यहां पे पुट कर दो 0, तो देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब y का वैल्यू पुट कर दो 0, जब y का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाय 3। सो पॉइंट्स आर 0, 7 by 5, 7 by 5 means 1 point something and 7 by 3 means again 3 2s are 6, that is 2 point something. So पहला पॉइंट जो मिल रहा है 0, ये मिल रहा है 0, 7 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, राइट। सो 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग मीन्स सपोज यहां पे आएगा। सिमिलरली दूसरा पॉइंट जो है 7 by 3, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग 2 और 3 के बीच में आएगा, सपोज यहां पे आएगा। अगर इन दो पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपको लाइन मिल रही है और ये आप डॉटेड ले लोगे क्योंकि कंडीशन यहां पे लेस देन है, राइट। सो लाइन जो है वो डॉटेड आ रही है। अब हमें मिली बाउंड्री, इस रीजन की बाउंड्री हमें मिल रही है, लेकिन हमें बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें रीजन चाहिए। और रीजन अब इस बाउंड्री के नीचे होगा या बाउंड्री के ऊपर होगा, डिसाइड करेगा फिर से ऑरिजिन। तो ऑरिजिन मतलब x का वैल्यू पुट कर दो 0, y का वैल्यू पुट कर दो 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन 7, 0 इज लेस देन 7, ट्रू मींस origin satisfies the region। when origin satisfies the region, region must be below the line, तो region ऐसे आएगा। जब region ऐसे आएगा, feasible region इसके ऊपर है, जो रीजन यहां से आ रहा है वो इसके नीचे है, तो इस रीजन और फीजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जब इस रीजन और फीजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो आपका रिक्वायर्ड मिनिमम जो होगा वो होगा 7। अब नीचे लिखोगे सिंस द रीजन, कौन सा रीजन, 3x plus 5y is less than 7, has no point in common with the feasible region. Since the region 3x plus 5y is less than 7 has no point in common with the feasible region, so the minimum value of z is 7 at a corner point। कौन से corner point पे आ रहा है 7? at a corner point, yes, b of 3/2
b of 3/2 comma 1/2. इसका क्या मतलब? दैट इज व्हेन x is equal to 3/2 and y is equal to 1 divided by 2. So no doubt the feasible region was unbounded, but still the linear programming problem has its solution, and that solution is 7, which is at a corner point b of 3/2 comma 1/2. And that is all about the question, and that's very much important question as far your examination is concerned. Question number 4, frequently asked in the examinations. So बहुत अच्छा question है. So all about question number 4. Now क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सिमिलर इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह. सो यू कैन हैव अ ट्राई, एंड फ्रॉम 7 onwards we are going to discuss that questions in the next class.